Hello everyone, today we are going to start our ninth chapter of English literature, that is Independence Day. So we celebrate our Independence Day on every 15th August, right? And why? Because on this day our India, our country got independence from Britishers. So let us just start the chapter. First we will read the chapter and then we'll go through it. So the first question here is a warm-up question. What is it? Tick the flag that belongs to India. So out of these three flags, हमको India के flag पर tick करना है. So what do you think? Which flag is of India? This one? Yeah, absolutely correct. So this is the flag of India. So we'll take this picture. Now, do you know the countries the other two flags belong to? ये flag India का हो गया, right? अब हमें इन दोनों flags का भी बताना है कि किस country को belong करते हैं. So this flag is of Italy, and this flag is of UAE, United Arab Emirates. Now, India is the 7th largest country in the world. इंडिया जो है वो जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उसमें 7th लार्जेस्ट कंट्री पर आता है, मतलब 7th रैंक पर आता है लार्जेस्ट कंट्रीज में. द नेम इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस. इंडिया का नाम जो है वो कहाँ से बना? रिवर इंडस पर बना है इंडिया का नाम. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, दैट वी ऑल नो. एंड द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया इज मुंबई. इंडिया की सबसे बड़ी सिटी का क्या नाम है? मुंबई. दे आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. द इंडियन रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया. इंडिया की करेंसी को हम क्या कहते हैं? रूपी. इंडिया हैज आइलैंड्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, बीचेस एंड प्लेन्स. आइलैंड्स क्या होते हैं? जहां पर आइलैंड्स किस जगह को हम आइलैंड्स कहते हैं? जहां पर जो है वो पानी भी होता है और थोड़ी सी लैंड होती है ना, लैंड और पानी. माउंटेन्स तो हमें सबको पता है माउंटेन्स किसे कहते हैं. डेजर्ट मतलब वो होता है ना, डेजर्ट मतलब रेतीली जगह जो होती है, रेगिस्तान. बीचेस मतलब समुद्र के पास वाली जगह है ना. एंड प्लेन्स मतलब जैसे अलीगढ़ जो है वो उसकी लैंड कैसी है? प्लेन. The lotus is India's national flower and the peacock is the national bird. Lotus जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है और पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का. The games chess and snakes and ladders were invented in India. So this game is snake and ladder. So this has been invented in India. ये भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था और चेस भी इंडिया में इन्वेंट हुआ था, right? Now let's read the story. Wake up, sleepyhead, shouted Papa. Indu and Jayant, still in their beds, rubbed their eyes. Let us go fly some kites, said Papa as he came in and sat on Jayant's bed. So, क्या होता है? रूम में जो है वो जयंत एंड इंदू आर स्लीपिंग, है ना, दोनों सो रहे होते हैं और उनके पापा जल्दी से रूम में आते हैं और उनको बोलते हैं उठो, है ना. स्लीपी हेड्स किन्हें कहेंगे? जो लोग सो रहे होते हैं, सोते हैं बहुत ज्यादा, है ना. दे आर कॉल्ड स्लीपी हेड्स. तो पापा अगर बोलते हैं कि उठो सोते हुए लोगों और चलो जल्दी से काइट्स उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं. It was 15th August. Indu and Jayant were excited to celebrate Independence Day with Papa, Ma and all their neighbors. Both of them quickly showered and dressed. So, what was the day? It was 15th August, right? और इंदू और जयंत दोनों बहुत ही ज्यादा excited थे अपने पापा के साथ Independence Day celebrate करने, और माँ और जो आसपास के neighbors थे वो भी. So, वो दोनों जल्दी से बात लेकर जल्दी से तैयार हो गए अच्छे कपड़े पहनकर. जयंत wore his kurta pajama and Indu an orange kurta with green salwar and white dupatta. As you can see here in the picture, जयंत ने जल्दी से कुर्ता पजामा पहना. Actually in this picture the Jayant is wearing some other dress and the description is given of some other dress, but according to the story written, Jayant wore a kurta pajama and Indu wore an orange kurta with a white dupatta and green shalwar. Why? Because this is the color of the tricolor of our flag. ठीक है, तो इंदू ने ये कपड़े पहने, जैन ने कुर्ता पजामा पहना और दोनों जल्दी से रेडी हो गए. द होल फैमिली वॉक्ड टू द प्लेग्राउंड व्हेन द इंडियन फ्लैग was hoisted. Everyone sang the national anthem
पूरी फैमिली फिर तैयार होकर बाहर प्लेग्राउंड में गई जहां इंडियन फ्लैग होस्ट किया गया, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है ना ऑन एवरी 15th of August एंड 26th of January और ऑन एवरी ओकेजन, राइट। क्या होता है, नेशनल फ्लैग को जो है होस्ट किया जाता है। तो वैसे ही उनके प्ले ग्राउंड में जब वो गए तो वे नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया और एवरीवन सैंग द नेशनल एंथम। और नेशनल एंथम जब हमारे स्कूल में भी जब फ्लैग होस्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। तो उसी तरह से इन लोग ने भी जैसे ही फ्लैग होस्ट हुआ नेशनल एंथम गाया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स बांटी गई, जैसे हमारे स्कूल में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ना अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दैट ऑल द किड्स रैन टू द रूफ टॉप्स टू फ्लाई देयर काइट्स। और उसके बाद सारे बच्चे जल्दी से छत पर भाग गए काइट्स उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। देन व्हाट हैपेंड, ड्यूरिंग लंच जयंत आस्क्ड माँ व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। खाना खाते वक्त, लंच के वक्त जयंत ने पूछा माँ हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। माँ थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड रिमेंबर लास्ट ईयर इन द पार्क हाउ द बिग बॉयज टुक इंदूज फुटबॉल एंड पुश्ड यू ऑफ द स्लाइड, यू केम होम क्राइंग। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि जयंत डू यू रिमेम्बर, क्या तुमको याद है लास्ट टाइम कुछ बड़े बच्चे थे तुम लोग से, बड़े लड़के थे जिन्होंने इंदू से फुटबॉल ले लिया था, छीन लिया था और तुमको स्लाइड से गिरा दिया था और तुम लोग रोते हुए घर पर आए थे। सो ही सेड यस सेड इंदू बट लेटर वी स्केयर्ड देम ऑफ। सो इंदू ने कहा जी मम्मा ऐसा हुआ था लेकिन बाद में हमने उनको डरा दिया था। दे नेवर बॉदर्ड अस अगेन, और उसके बाद उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया। राइट, द स्टोरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इज समथिंग लाइक दैट। मेनी ईयर्स अगो द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड बिगेन टू रूल अस। द इंडियन पीपल लॉस्ट देयर फ्रीडम बट दे वर स्केयर्ड टू फाइट बैक बिकॉज दे थॉट दैट द ब्रिटिश वर स्ट्रॉन्गर, जस्ट द वे द टू ऑफ यू फेल्ट व्हेन द बिग बॉयज स्केयर्ड यू। सो मम्मा कहती हैं हाँ एकदम सही, इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी, हमारे इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। कुछ साल पहले कुछ ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया आए और उन्होंने हम पर, हमारी कंट्री पर रूल करना शुरू कर दिया और हम जो इंडियंस थे हमारा फ्रीडम खत्म हो गया। लेकिन हम जो है इतना डर गए थे उन ब्रिटिशर्स से कि हम जो है उनसे लड़ नहीं पाए, उनसे अपनी कंट्री वापस नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, हम उनसे लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे, इसलिए हम उनसे अपनी कंट्री नहीं वापस ले पा रहे थे, हम उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। जस्ट द वे द टू ऑफ, जैसे कि आप लोग से जब आप इंदू की बॉल ली और आपको स्लाइड से गिराया तो आप उन बड़े जो लड़के थे जो आपको परेशान कर रहे थे आप उनसे नहीं फाइट बैक कर पाए, है ना। What is freedom? Freedom asked Jen. Jen ने पूछा माँ freedom क्या होता है? So माँ replied, माँ looked at him and said, freedom is when you can do the things you want, but freedom also means that you cannot hurt anyone else. Tell me, how did you feel when the big boys did not let you play? माँ ने कहा कि फ्रीडम का मतलब होता है कि आप जो करना चाहो, जो आपका दिल चाह रहा हो वो आप करो और जो है वो आपको कोई उसके लिए रोके टोके ना। आपका जहां जिस स्कूल में चाहे आप एडमिशन लो, जिस प्लेग्राउंड में चाहो आप खेलो, जहां से चाहे शॉपिंग करो, है ना, जो चाहे आपका मन करे करो, लेकिन आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओ, है ना। टेल मी हाउ डिड यू फील व्हेन द बिग बॉयज डिड नॉट लेट यू प्ले। अच्छा बताइए आपको कैसा फील हुआ था जब आपको वो बड़े बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने नहीं दे रहे थे। जैन सेड एंग्री एंड सेड, जैन ने क्या कहा, बहुत ही गुस्सा और बुरा लग रहा था। माँ आस्क्ड व्हाई, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले। माँ ने बोला क्यों, तो जैन ने कहा क्योंकि मैं खेलना चाहता था। माँ सेड यस बिकॉज दे डिड नॉट लेट यू प्ले वेयर यू वांटेड। जैन नॉडेड, तो माँ ने कहा हाँ क्योंकि वो तुमको नहीं खेलने देना चाह रहे थे। तुमको क्यों बुरा लग रहा था और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तुमको नहीं खेलने देना चाह रहे थे जहां तुम खेलना चाह रहे थे, है ना। तो जैन ने हाँ में सर हिलाया। Then, just like that, the British told the Indians what they should or should not do. Everyone protested and decided to fight back. They fought hard until the British gave up and left India. On 15th August 1947, India finally got its freedom. तो जैसे कि तुमको बड़े बच्चे परेशान कर रहे थे और वहां खेलने नहीं देना चाह रहे थे, वैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने इंडियंस के ऊपर अपने रूल्स बना दिए थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब ब्रिटिशर्स ने रूल ओवर कर लिया था इंडिया को, तो इंडियंस के पास
पास अपना फ्रीडम नहीं था अपनी मर्जी से कुछ करने का। बिजनेस कहाँ करना है, किसी स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, क्या काम करना है, वो सब ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये इंडियंस के लिए बहुत बुरा था, उनसे उनका सारा फ्रीडम छिन गया था, वो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाते थे। तो बहुत अपसेट और बहुत सैड, एंग्री, गुस्सा भी आता था और बहुत सैड रहते थे। पहले तो ऐसा हुआ कि वो ब्रिटिशर्स से डरे हुए थे, है ना, तो वो फाइट बैक नहीं कर पा रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, वो यूनिटी जब उनकी बनी, उन्होंने सबने मिलके, सारे इंडियंस ने मिलके डिसाइड किया कि अब ये हमारी कंट्री है और हमको ब्रिटिशर्स को यहाँ रहने नहीं देना है, हम फाइट बैक करेंगे, हमारी कंट्री में वो कैसे रूल कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया लड़के, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारा, है ना, बहुत लड़ाइयां लड़ी ब्रिटिशर्स से, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स गेव अप। एक दिन ऐसा आया जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया, है ना। सो व्हाट वाज दैट डे? दैट डे वाज ऑन 15th August 1947। इंडिया फाइनली गॉट इट्स फ्रीडम। ये दिन था जब ब्रिटिशर्स सारे इंडिया को छोड़कर चले गए और इंडिया को वापस से अपना फ्रीडम मिल गया। That is why we celebrate 15th of August as our Independence Day, because that is the day we became free। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था। आप सोचिए कि आपको कोई किसी ने कंट्रोल कर रखा है, आपको जहां आपका मन कर रहा है वहां आप जो आपका मन कर रहा है वो आप खा नहीं सकते, जहां चाह रहे हो आप खेल नहीं सकते, है ना, सब सारी चीजें कोई और डिसीजन ले रहा है आपके, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अब सोचिए आप फाइट बैक करें, है ना, आप अपने राइट्स के लिए लड़ें और फाइनली एक दिन वो आपको छोड़ के चला जाए और आपको वापस से आपका फ्रीडम मिल जाए, तो कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। वो दिन आपके लिए शायद बेस्टेस्ट डे ऑफ योर लाइफ होगा, तो आप उस दिन को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहेंगे, है ना। तो सेम लाइक दैट वी सेलिब्रेट 15th of August as our national day, right? Why? Because we got our freedom on this day. So Indu and Jayant were quiet and thoughtful. So they were quiet, वो बहुत खामोश थे और वो सोच रहे थे इस बारे में कि वाकई में। जायंत आस्क्ड, डज अंकल डिंकू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे टू? तो द किड्स लव्ड अंकल डिंकू हु लिव्ड इन द यूएसए। सो जयंत और इंदू के एक अंकल थे जो यूएसए में रहते थे, तो उन्होंने सोचा इस बारे में। फिर सोचने के बाद थोड़ी देर बाद अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया कि क्या मम्मा डिंकू अंकल भी सेलिब्रेट करते होंगे इंडिपेंडेंस डे? तो मम्मा ने आंसर किया, ही डज बट ही सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूएसए। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। इन द यूएसए इट इज द 4th of July। डू यू नो व्हाट देयर फ्लैग लुक्स लाइक? सो माँ ने कहा हाँ वो भी करते हैं, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना अलग इंडिपेंडेंस डे होता है ना। जिन कंट्रीज पर कभी ना कभी किसी ना किसी ने रूल किया है और उन्होंने फिर फाइट बैक किया और जिस दिन भी उनको फ्रीडम मिला, उस इंडिपेंडेंस मिला उन रूलर्स से, तो उस डे को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो अंकल डिंकू कहाँ रहते हैं? यूएसए में, और यूएसए को कब फ्रीडम मिला? 4th of July। सो दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 4th of July। वी सेलिब्रेट ऑन 15th of August, राइट? सो इज इट लाइक आवर्स? आस्क्ड इंदू। इंदू ने पूछा क्या वो सॉरी डिफरेंट इज इन द यूएसए इट इज अ 4th। डू यू नो व्हाट देयर फ्लैग लुक्स लाइक? मम्मा ने पूछा कि क्या आपको पता है यूएसए का फ्लैग कैसा होता है? तो इंदू ने बोला क्या वो फ्लैग हमारी तरह है? No, she said, their flag has red, white and blue colors with 13 strips and 50 stars. They call it the stars and stripes sometimes. मम्मा ने कहा नहीं वो हमारे जैसा नहीं है। So different countries have different flags of their own, है ना। जैसे इंडिया का जो है हमारा ट्राई कलर है, राइट, और ये है यूएसए का फ्लैग। यूएसए के फ्लैग में यहाँ देखिए there are stars, ठीक है, 50 stars are here and these are 13 strips. So they sometimes call it stars and strips. Let me tell you a secret now. What is the color of your room, इंदू? So मम्मा कहती है चलो मैं तुमको एक सीक्रेट बताती हूँ। इंदू बताओ जरा तुम्हारे रूम का क्या कलर है? माँ, येलो माई फेवरेट, इंदू रिप्लाइड। इंदू ने फौरन से कहा येलो मेरा फेवरेट कलर है, येलो, और वो ही मेरे रूम का कलर है। एंड वॉट हैव यू डेकोरेटेड इट विद? और तुमने उसको कैसे डेकोरेट किया हुआ है? All my favorite things, my soft toys, my posters। इंदू trailed off। इंदू ने बताना शुरू किया कि मेरे फेवरेट थिंग्स उसमें ड्रॉ हुई हुई हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, राइट। येलो मीन्स ब्राइट लाइक द सन, हैप्पी एंड फन लाइक यू, एंड ऑल योर फेवरेट थिंग्स टेल अस व्हाट यू लाइक, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, सेड माय। इंदू वाज वेरी हैप्पी। तो हमारी जो भी चॉइसेस होती हैं, जो भी हमें पसंद नापसंद होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी पर, है ना। जैसे कि येलो कलर अगर हमें पसंद है, दैट मीन्स येलो कलर कैसा होता है? ब्राइट लाइक सन, राइट, सन का कलर जैसे होता है ब्राइट।
हैप्पी एंड फन, तो इसका मतलब येलो कलर जिसे पसंद होगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हैप्पी एंड फन लविंग। सो हमारे जो भी चीजें होती हैं जो हम पसंद करते हैं नापसंद करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी तरीके से हर कंट्री का फ्लैग रिफ्लेक्ट करता है उस कंट्री के बारे में। जयंस रूम इज ब्लू बिकॉज ही लव्स टू स्विम इन द सेम वे द कलर्स इन आवर फ्लैग ऑल्सो मीन समथिंग एंड टेल अस अबाउट इंडिया, है ना। तो जयंत का रूम कैसा है, ब्लू कलर का पेंट हो रखा है। क्यों, क्योंकि जयंत को स्विमिंग पसंद है और वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जब हम सीज वगैरह को देखते हैं, कलेक्टेड वाटर देखते हैं, तो वो किस कलर का हमें नजर आता है, ब्लू, राइट। सो उसी तरह से फ्लैग्स भी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी कंट्रीज के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में। तो हमारा कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंट्री के बारे में, द सैफरन कलर ऑन टॉप स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो हमारा जो सैफरन कलर है फ्लैग में सबसे ऊपर वाला कलर, वो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ एंड करेज, हिम्मत और ताकत दिखाता है। एंड ग्रीन आज इंदू ने कहा, और हरा कलर, द ग्रीन कलर शोज द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड, सेड पापा। सो एज वी ऑल नो दैट आवर कंट्री इज वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, फार्मिंग वगैरह, क्योंकि हमारी कंट्री का जो लैंड है मोस्टली वो बहुत ज्यादा अच्छा है, हरा भरा है ना। दैट इज वाई द ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट दैट। Just like that, white color shows honesty and peace of the land. White also tell us to be truthful. और white क्या रिफ्लेक्ट करता है, white रिफ्लेक्ट करता है सच्चाई और शांति, पीस मतलब शांति। और white ये भी रिफ्लेक्ट करता है सच्चाई, है ना। एंड द ब्लू व्हील आस्क्ड जयंत। और ब्लू व्हील का क्या मतलब है, हमारे फ्लैग में बीच में ब्लू व्हील भी होता है ना, दैट इज द अशोक चक्र, उसको क्या कहते हैं, अशोक चक्र। माँ एडेड एंड इट हैज 24 स्पोक्स, कितने स्पोक्स होते हैं उसमें, 24। दीज स्पोक्स रिप्रेजेंट 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे। और उसका भी एक मतलब है, वो जो 24 स्पोक्स हैं, वो जो व्हील है उसमें 24 स्पोक्स हैं, उसका क्या मतलब है, 24 प्रीशियस आवर्स। आप क्लॉक में देखते हैं ना 24 आवर्स होते हैं इन अ डे, सो that reflects 24 precious hours of the day. Ma, does the color of my skirt have any meaning? asked इंदू। इंदू ने फिर सोचा, अपनी थोड़ा थॉटफुल होकर अपने स्कर्ट को देखा, विच वॉज ब्लू इन कलर। और फिर माँ ने पूछा, जब इंदू को लगा कि अच्छा फ्लैग के भी सारे कलर्स कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रूम्स के कलर भी रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ हमारी पर्सनैलिटी, तो क्या जो मैंने स्कर्ट पहन रखा है उसका भी कोई मतलब होगा। सो इंदू पूछती है अपनी मम्मा से कि माँ, डज माई स्कर्ट कलर ऑल्सो हैव सम मीनिंग? सो आई एम श्योर इट हैज सम मीनिंग। मम्मा कहती है हाँ, मुझे जरूर लगता है कि इसका भी कोई मतलब होगा, बट दैट इज फॉर अनदर डे, लेकिन वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और सब हंसने लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। आई गेस दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर in our book, and this has written by Agamoni Barbara. Was born in Assam. She writes short stories and runs a popular blog, Internet Diary. She loves writing for children. So ये जो राइटर हैं वो असम में इनका बर्थ हुआ और ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं, और इनका एक पॉपुलर ब्लॉग भी है जिसका नाम है इंटरनेट डायरी, और इनको बच्चों के लिए लिखना बहुत पसंद है। और नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस।